Hello everyone, so welcome to yet another recording of your CMA Mentor. So, in today's video, I am going to continue with the video number 3 of SPMBV paper 20A, chapter 7, which I was basically helping you out by solving the questions which are given on in your institute material so that it will be easy going for you to understand the questions and the concept of this chapter. So, the next topic which we are going to deal with is earning multiple. So, basically, this is a method which is also referred to as relative valuation approach. It has many of the methods of valuation like EBITDA multiple method, or we can say revenue multiple method, also comparable company valuation approach. So I would what I would do is I would start directly with the question so that you would get a better understanding of um, the concepts. Okay, so the first question is illustration number 7. Let's start with it. What is given here is Aditya has been assigned to value the investment portfolio of ABC Corporation Limited for the financial reporting purpose as on 31st December 2021. The portfolio consists of the following securities. So basically there are two securities of Reliance Industries Limited and the second one is of Mahindra and Mahindra Limited. So the cost per script is given, the number of units is given and the cost value is given. Also Aditya has collected the share price information of the last 10 trading sessions. मतलब 10 ट्रेडिंग सेशंस के उसने डेटा कलेक्ट कर रखे हैं और उसके वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखे हैं. सो द क्लोजिंग प्राइस इज गिवन, द नंबर ऑफ शेयर्स इज गिवन of last 10 trading days basically from 20 December to 31st December 21. Also the total turnover is given. So let me take you above and tell you what इसमें basically we have to calculate the value of the company by market price method, which is not mentioned in the question but it is deemed that you have to calculate the value. Okay, so what we do is that wherever in the question it is given the data regarding the 10 trading sessions or the closing price or the total turnover, what we do is that we here above it is given, let's read once. So a valuer should consider the volume weighted average price. What is this term? It is referred to as volume weighted average price observed over a reasonable trading period. Here we have 10 trading days. Okay, while valuing the assets which are traded in the active market. Okay, in case asset is traded in more than one market, the valuer should consider the market where the trading volume is highest. मतलब where the trading is highest वहाँ का हमें कंसिडर करना चाहिए. ठीक है, वही मार्केट अपने को कंसिडर करना चाहिए. ओके, sorry, so let's go with it, the question. So firstly, how will we calculate volume weighted average price? So for calculation of volume weighted average price, what we do is we take the sum total of all the traded turnover of the number of trading days. Okay, and we divide it by the number of shares, total number of shares, that is the sum total of the total number of shares of the data given in the question. Okay, so let's start with Reliance Limited. So here over here the number of shares are given and the total turnover is given. Also it is very easy going for you because the sum of the number of shares is calculated and the total turnover is calculated and given in the question. So how will you calculate volume weighted average price? It will basically be calculated by dividing the total turnover, which is this, by the number of shares, which is this given over there. So this is the volume weighted average price of Reliance Limited. Similarly, we'll calculate for Mahindra and Mahindra. Okay, when this is done, let's proceed with the question. So we have to calculate basically the total value of the shares
which is in the equity shares in the market. We have to calculate total value of equity shares in the market. So basically in the question यहाँ पे तुमको कॉस्ट दे रखा है और नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है. तो अगर मार्केट में कोई चीज़ ट्रेड हो रहा है, सो विल टेक द मार्केट वैल्यू. इसलिए वी हैव कैलकुलेटेड दिस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस विच इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज फेयर वैल्यू. ओके, so this is basically the fair value rate, that is 2343.76 and 824.21. This is the fair value rate which we have calculated over here. Okay, also the cost per scrip was given, number of units of Reliance was given. So cost is basically इस दोनों का multiplication is the cost which is calculated. Okay, अब अपने को क्योंकि मार्केट का निकालना है क्या वैल्यू होगा इक्विटी शेयर्स का, तो अपने फेयर वैल्यू रेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो अपने ऊपर निकाल चुके हैं, विच इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस. ओके, जिसका रेट अपने ऊपर निकाले, डैट इज 2343.76 फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड and 824.21 for Mahindra and Mahindra Limited. Okay, so how will you calculate fair value? It will be calculated by multiplying the number of units with the fair value rate. Okay, ऊपर मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला होता है, how will you calculate the value of equity, ठीक है, using market value method, market price per share, or we can say it fair value per share, okay, into number of units of equity shares. Okay, वही चीज़ अपने यहाँ पे अप्लाई किए एंड द आंसर कम्स टू, टोटल वैल्यू कम्स टू दिस. ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यूज आर दिस एंड द टोटल वैल्यू कम्स टू दिस. ओके, easy. Let's read once what is given here in the last para. Observe that we did not consider the closing price as on the valuation date, but we assessed the volume weighted average price for the purpose of valuation, which I have already told you above. In the absence of volume weighted average, right, basically if the volume weighted average price is not given in the question, then we can use the closing price which was given over there. Okay, done. Let's proceed with another sum, that is question number 8, illustration 8. Turtle Limited's EPS for the year is INR 100. The current price, which is basically the market price, is given. Market price per share is given INR 2200. Okay, assuming that EPS is expected to grow at the rate of 12% in the next 1 year. मतलब it is telling that अभी जो EPS है which is 100 rupees, आने वाले एक साल में वो 100 into 1.12 which will be basically 112 INR. ठीक है, ये हो जाएगा एक साल के अंदर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 100 plus 12% which is 112 INR. एक साल में ये हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा EPS का. ओके, व्हाट शुड बी द प्राइस आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ. मतलब बेसिकली इट इज टेलिंग कि अभी का EPS इज गिवन इज विच इज गिवन इज INR 100. ऑल्सो द मार्केट प्राइस पर शेयर इज गिवन INR 2200. तो इससे यू कैन easily calculate PE ratio which will come to INR 22. Hopefully you know to calculate PE ratio. Formula is basically MPS by EPS. ठीक है, तो INR 22 आ गया. नाउ क्या बोल रहे हैं कि एक साल बाद तुम्हारा EPS विल बी 112 INR, मतलब 12% से इंक्रीज हो जाएगा. बट तुम्हारा PE रेशियो तो जो निकाले हैं उसी को अज्यूम करेंगे, वही रहेगा. PE रेशियो कांस्टेंट ही रहेगा, INR नहीं होता है, सॉरी. PE रेशियो में वी डोंट यूज़ दी सिंबल. ओके, तो 22 आता तुम्हारा PE रेशियो. तो अब इससे कैन यू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर अभी का. येस, वी कैन ईजिली कैलकुलेट. PE रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, MPS बाई EPS. ठीक है, तुम्हारा PE रेशियो इज़ 22 विच इज़ कॉन्स्टेंट विच हैज़ नॉट चेंज्ड. MPS निकालना है, EPS का वैल्यू इज़ 112. सो बेसिकली MPS क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन विच विल कम टू INR 2464 per share. Done. Easy going sum. Okay, let's understand what is Gordon growth model.
जस्ट अ मिनट, लेट मी इरेज ऑल दीज सो दैट थोड़ा क्लियर हो जाए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. तो गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का बेसिकली वैल्यू जब भी अपने फर्म निकालेंगे गॉर्डन ग्रोथ मॉडल से, सो व्हाट डू वी यूज़ द फॉर्मूला D1 बाय आर. आर मतलब KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस G ग्रोथ रेट. ठीक है, ये होता है बेसिक फॉर्मूला गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का. ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द सम विल यू अंडरस्टैंड इट बेटर. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 9. जैक लिमिटेड हैज़ एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ 20%. ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 20%. रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 14% and expected dividend growth rate is 10%. So we have to calculate Jack Limited's PE ratio, justified PE ratio. Okay, so अब ऊपर चलते हैं. What was given in the question? Just a minute, where it has gone. Okay, हाँ. So how do we calculate this? We calculate basically using the formula DPS by KE या RE या जो भी R, जो भी सिंबल तुम लोग यूज़ करते हो, माइनस ग्रोथ रेट. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो तुम्हारा 20% दिया हुआ है. DPS इज बेसिकली डिविडेंड, DPS नॉट, वी कैन बेसिकली इसके लिए एक्रोनिम ज़्यादा अच्छा DPR होगा. तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% दिया हुआ है. ठीक है, यू कैन राइट इट 0.20 बाय 0.14 माइनस 0.10. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 90% दिस विल नॉट कम इन एग्जाम. आएगा भी तो मे बी यू कैन सी दिस क्वेश्चन इन MCQ. ओके, नाउ द क्वेश्चन विच वी आर डूइंग नाउ, that is illustration number 10, is very very important. This is a most repeated question. क्या करेंगे, they'll change the numbers and they'll give a similar question. और ये question is most expected question for the examination. Okay, so इसको अच्छे से समझना. This method is called comparable company valuation method. Okay, so इसमें क्या करते हो, we what basically do is जो comparable company का information दिया रहता है उस बेसिस पे अभी जो अपना कंपनी है उसको उस बेसिस पे अपने वैल्यू करते हैं. ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वैल्यूएशन मेथड बहुत यूज होता है. ओके, सो लेट्स गो विद इलस्ट्रेशन नंबर 10. Paz Steel is a privately held company with revenue of ₹122,000 million and reported a net profit of 12,000 million in the latest period. The company has 2,800 million shares outstanding. ठीक है, 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है एंड शेयर्स आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिया हुआ है ऑफ Paz Steel. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. A valuer has identified the following comparable companies along with their respective data. Okay, कंपेरेबल कंपनीज का डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू दिया हुआ है, EPS दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है ना, एवरेज प्राइस दिया हुआ है ऑफ 3 कंपनीज, दैट इज P लिमिटेड, Q लिमिटेड एंड R लिमिटेड. तो यू अब क्या निकालना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में. वैल्यू ऑफ Paz Steel लिमिटेड बेस्ड ऑन एवरेज PE मल्टीपल ऑफ कंपेरेबल कंपनीज. पहले इसके बेसिस पे अपने को वैल्यू निकालना है, PE मल्टीपल के बेसिस पे, एवरेज PE मल्टीपल्स ऑफ PQR लिमिटेड. उसके बेसिस पे वी हैव टू कैलकुलेट Paz Steel लिमिटेड कंपनीज वैल्यू. ऑल्सो वैल्यू ऑफ Paz Steel लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस टू सेल्स मल्टीपल्स ऑफ कंपेरेबल कंपनी. ठीक है, तो मतलब प्राइस टू सेल्स मल्टीपल एक निकालना है, एक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल वी हैव टू कैलकुलेट. And we have to take the average of all the 3 companies PQR limited, and that value we have to put for Paz Steel limited and calculate the value of Paz Steel limited. Okay, so what will we do now? So abhi we will go with the solution in the book. I'll not solve it by myself. I'll help you out with the solution which is given in the book. Okay, so basically revenue is given. We have to calculate
price earning ratio. So how is price earning ratio calculated? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर. तो एवरेज प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है पी का, और अर्निंग प्राइस दिया हुआ है. दिस बाय दिस विल कम टू 2.34. ऐसे ही दोनों और का कर लेना, क्यू एंड आर का. प्राइस टू सेल्स और एंड देन व्हाट विल यू कैलकुलेट? एवरेज. रिमेंबर स्टूडेंट्स, वेन एवर 3 और 4 और 5 जितने भी कंपनी का तुमको डेटा दिया हुआ रहे और तुमको कंपेरेबल कंपनी वैल्यूएशन मेथड यूज़ करना है. देखो यहाँ पे टर्म यूज़ हो गया कंपेरेबल कंपनी. इससे यू विल अंडरस्टैंड कि दिस मेथड विल बी यूज्ड. ओके, सो वेर एवर द क्वेश्चन इज गिवन ऑफ 2 or 3 कंपनीज डेटा इज गिवन, वॉट यू विल डू एट द एंड इज दैट जो भी रेशियो निकालोगे उसका एवरेज वैल्यू से यू हैव टू कंपेयर एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी जिसका हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकालना है. ओके, सो इसका एवरेज निकालिए तीनों का, जो कि 4.75 आएगा. ठीक है. नाउ प्राइस टू सेल्स रेशियो कैसे निकलेगा? तुम्हारा प्राइस दिया हुआ है 30.64, विल डिवाइडेड बाय सेल्स कितना दिया हुआ है? सेल्स इज गिवन 17,376.80 मिलियन. ओके, जस्ट अ मिनट, एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं ताकि आई कैन से यू. नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ किया है. ओके, ये तुम्हारा प्राइस टू सेल्स रेशियो. अच्छा, रेवेन्यू तुम्हारा पूरा दिया हुआ है, मतलब बेसिकली दिस इज द वैल्यू विच इज गिवन. वी आर कैलकुलेटिंग पर शेयर वैल्यू, इसलिए हम लोग रेवेन्यू पर शेयर निकालेंगे. तो डैट इज 17,376.80 को पहले इससे डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्राइस पर शेयर बाय सेल वैल्यू सेलिंग प्राइस पर शेयर. ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे इसमें भी पी रेशियो में व्हाट वी कैलकुलेटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर, ऐसे निकाले थे ना अपने वैल्यू. वैसे इसमें भी प्राइस पर शेयर बाय सेलिंग प्राइस पर शेयर ऐसे वैल्यू निकालेंगे. तो सेलिंग प्राइस पर शेयर विल बी कैलकुलेटेड रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ शेयर्स. फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, एवरेज प्राइस दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय जो ये वैल्यू आएगा 17,376.80 बाई 304.74, जो वैल्यू आएगा उसको इससे डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर वैल्यू आएगा दैट विल कम टू 0.54 विच इज़ प्राइस बाय सेल्स रेशियो. ओके, डन. इसमें भी तीनों का निकालो इसी मेथड से एंड देन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल 3. ओके, विच विल कम टू 0.48. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज मोर इम्पॉर्टेंट. अब मैं समझाती हूँ हाउ विल यू कैलकुलेट. देखो, तुम्हारा पैस स्टील लिमिटेड का तुम्हारा सबसे पहले प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेथड के केस में लेट मी टीच यू कैसे करना है. प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेथड मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर, जिसका वैल्यू तुम लोग ने निकाल रखा है 4.75. ओके, तो अब अपने क्या करेंगे कि तुम्हारा अर्निंग दिया हुआ है शायद कंपनी का. जस्ट लेट मी सी पैस का क्या क्या डेटा था, लेट मी वंस चेक. पैस लिमिटेड का तुम्हारा अर्निंग दिया हुआ है, डैट इज रेवेन्यू दिया हुआ है. ठीक है, रेवेन्यू कितना दिया हुआ है? रेवेन्यू इज गिवन. ओके, अर्निंग मतलब नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर? कैसे निकलेगा? तुम्हारा 4.75 इंटू 12,000 अर्निंग प्राइस पर शेयर. ठीक है, तो 12,000 इंटू 4.75 विच कम्स टू 57,000. ये बुक में थोड़ा सा एरर है, प्लीज़ डू करेक्ट इट. ये 57,000 हो जाएगा. इसको फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना दिया हुआ है इसका? पैस लिमिटेड का 2,800 मिलियन शेयर्स है, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे 2,800 मिलियन, तो तुम्हारा वैल्यू पर शेयर निकल गया प्राइस अर्निंग मल्टीपल मेथड से. अब वैसे प्राइस बाय सेल्स मेथड से क्या करोगे? तुम्हारा सेल्स दिया हुआ है 1,22,000, हाँ 22,000 दिया हुआ है, और तुम्हारा इतना मल्टीपल निकला है 0.48. तो क्या करोगे? बेसिकली क्या लिखते हो? प्राइस बाय सेल्स का वैल्यू तुम्हारा आया है 0.48. तुम्हारा प्राइस निकालना है अपने को, तो कैसे करेंगे? 0.48 इंटू 122,000. तो इसका भी शायद वैल्यू गलत दिया हुआ है. आई एम राइटिंग द करेक्ट वैल्यू ओवर हियर. यहाँ पे आएगा 58,560. इसको करेक्शन प्लीज़ डू इट बिकॉज एग्जाम में यू विल फेस अ प्रॉब्लम अदरवाइज एग्जाम टाइम में. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 2800. तो प्राइस पर शेयर वैल्यू पर शेयर निकल गया तुम्हारा 20.9
91 आएगा, 914 आ रहा है लगभग. ओके, एक बार इसका भी लेट मी चेक. 57,000 बाई 2800, 20.35. दिस इज ऑल राइट. ओके, so done with this question as well. If you have any doubt, please drop a comment. I'll help you out once again if you have not understood this question. This is a very important question and chances are high that this question will be reflected in your question paper in this attempt. Okay, now let's proceed with illustration 11. A valuer has obtained the following information regarding InfoLink Limited. सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. सबसे पहले अपने देखते हैं व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इंटरप्राइज. व्हाट इज ईवी? ईवी इज बेसिकली इंटरप्राइज वैल्यू निकालना है बाय ईबीटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन रेशियो निकालना है. सो सबसे पहले हाउ विल वी कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू? सो इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? अपने इंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कि जितना भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में बेसिकली मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी में वी ऐड जितना भी डेट होता है, जितना भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहता है. बेसिकली ये जनरली क्वेश्चन में नहीं रहता है, बट इफ क्वेश्चन में इट कम्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू इज गिवन, will add that also. What is enterprise value? Enterprise value is basically पूरे enterprise का या पूरे firm का value निकालना है. तो उसमें क्या होता है कि पहले market value जितना कंपनी का हुआ, जितना debt आया कंपनी का, जितना minority interest, जितना preference share capital है, उसमें से अपने जितना भी cash या cash equivalent का amount दिया हुआ रहता है उसको अपने डिडक्ट कर देते हैं. तो इससे दिस इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग एंटरप्राइज वैल्यू. हाउ डू वी कैलकुलेट EBITDA? जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहता है उसमें विल ऐड इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. बेसिकली नाम से ही समझ में आ जाएगा. जितना भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस याद रखना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में व्हाट विल बी ऐड? इंटरेस्ट. आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट. ओके, टी स्टैंड्स फॉर टैक्स, डी स्टैंड्स फॉर डेप्रिसिएशन एंड ए स्टैंड्स फॉर अमोर्टाइजेशन. डन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चन. So in this question we have to calculate enterprise value. See, market price per share is given, number of shares outstanding is given. So if we multiply both, we'll get market value of the company. Okay, so this is the market value of the company reflected over here. Now इसमें what will we add? कोई भी debt अगर दिया हुआ है तो we'll add it. We'll add market value of debt which is given over here. We'll add market value of preference shares which is given over here, and कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को विल डिडक्ट. ओके, यही किया होगा. लेट्स वंस चेक. ओके, वैल्यू ऑफ डेट ऐड किया, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऐड किया और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माइनस कर दिया. तो दिस इज द इंटरप्राइज वैल्यू विच इज कैलकुलेटेड. ओके, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट EBITDA? इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन. सो लेट्स सी. देखो, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. नेट प्रॉफिट मतलब पैट होता है. डू रिमेंबर, पैट में अपने क्या करेंगे? विल ऐड टैक्स, विल ऐड इंटरेस्ट, विल ऐड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ठीक है, यही किया होगा. लेट्स चेक. पैट दिया हुआ है 14 लाख का, उसमें टैक्स, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो EBITDA आ गया. अब इसका रेशियो तो ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, EV बाय EBITDA, तो 4.16 आ गया. डन. अब अपने को क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट में? लेट्स सी. E-Link हैज़ रिपोर्टेड अ EBITDA ऑफ इतना, मतलब दूसरा कोई कंपनी है उसका EBITDA दिया हुआ है 27 लाख का, एंड इज़ अ कंपेरेबल कंपनी. व्हाट वी वर डूइंग अबव, कंपेरेबल कंपनी मेथड से वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. मतलब इन्फोलिंक का E-Link लिमिटेड इज़ अ कंपेरेबल कंपनी. सो हाउ विल यू कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू? सो बेसिकली अभी वी हैव कैलकुलेट इंटरप्राइज वैल्यू बाय EBITDA का रेशियो वी हैव कैलकुलेटेड विच हैज़ कम टू how much it has come? 4.16. ओके, एंड इसमें तुम्हारा बेसिकली EBITDA का वैल्यू दिया हुआ है 27 लाख. ठीक है, इक्वल्स टू 4.16. तो एंटरप्राइज वैल्यू ईजिली निकल जाएगा ऑफ इन्फोलिंक, E-Link, I mean E-Link Limited. This into this is the enterprise value of E-Link Limited. So it is a very easy going sum, but a very important sum for your examination. Also, illustration 11 is an important sum. It might be reflected in your examination of 6 marks.
Okay, so do solve this sum and go to exams. Okay, another method of valuation is comparable transaction method. Basically उसमें comparable कंपनी से अपने कंपेयर करके वैल्यू निकालते थे. नाउ व्हाट विल बी डू, ट्रांजैक्शन जो कंपेरेबल ट्रांजैक्शन होता है उस बेसिस पे विल वैल्यू द वैल्यू ऑफ अनदर कंपनी. ओके, मतलब आर कंपनी का अपने कंपनी का वैल्यू अपने कंपेरेबल ट्रांजैक्शन ऑफ अनदर कंपनी के बेसिस पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी विद इलस्ट्रेशन 12. मोनिका इज ट्राइंग टू वैल्यू चैट ऐप, अ चैट मैसेजिंग ऐप. एक चैट ऐप है जिसको मोनिका इज ट्राइंग टू वैल्यू. दैट हैज़ currently has 16 million user. Chat app has only 16 million user now, but does not generate any revenue. Basically chat app does not generate revenue as of now, today's date. ठीक है, she has identified WhatsApp app. You're very well aware of this app, WhatsApp app. ठीक है, अब she is taking a app which is similar to chat app, and she'll do, she'll compare the transaction of WhatsApp with that of chat app and calculate the value of chat app. ओके, अब कैसे करेंगे, आई थिंक सो आप इसको थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो रही होगी समझने में व्हाट आई एम टेलिंग, बट थ्रू सम यू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ओके, शी हैज आइडेंटिफाइड दैट व्हाट्सएप वाज रिसेंटली वैल्यूड एट USD 17.5 बिलियन while having 450 बिलियन यूजर्स. व्हाट्सएप का वैल्यू हुआ था इतना जिसमें से उसका यूजर्स था 450 मिलियन. ओके, कंसीडरिंग द डिफरेंस इन साइज. अब डिफरेंस इन साइज, मोनिका बिलीव्स दैट अ साइज डिस्काउंट ऑफ इतना शुड बी अप्लाइड बाय वैल्यूइंग चैट ऐप. मतलब बेसिकली इसमें तो यूजर 16 मिलियन ही है एंड फॉर व्हाट्सएप देयर आर 450 मिलियन यूजर्स. तो साइज डिफरेंस है, तो Monica is believing that because chat app has a less number of users, so it should get a discount of 95%. Okay, while valuing. Okay, and also the exchange value is given 65. ठीक है, USD मतलब 1 INR equals to 65 USD. सॉरी, 1 USD equals to 65 INR. ठीक है, ये है, मतलब INR पर USD दिया हुआ है ना. INR आई थिंक सो फॉरेक्स में यू हैव लर्नड इन SFM. INR पर USD इक्वल्स टू 65, मतलब 1 USD इक्वल्स टू INR 65. ठीक है, सो अब लेट्स गो विद द क्वेश्चन. इंटरप्राइज वैल्यू ऑफ व्हाट्सएप वॉज 17.5 बिलियन इट वॉज. तो इसमें इंटू 9 zeros करना 17.5 को, तो इतना वैल्यू आ जाएगा. और 45 लाख यूजर्स थे, 4.5 मिलियन यूजर्स थे. तो मिलियन में 6 0 से मल्टीप्लाई करना तो तुम्हारा ये वैल्यू आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद अब अब तुम्हारा इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है और डेली यूजर्स दिया हुआ है, तो वैल्यू पर डेली यूजर निकल जाएगा. बेसिकली क्या कर रहे हो तुम, सपोज एक जैसे मार्केट वैल्यू दिया रहता है और नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहता है. सो हाउ डू यू कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू बाय नंबर ऑफ शेयर्स. उसी हिसाब से यू अज्यूम दिस. ठीक है, इंटरप्राइज वैल्यू दिया हुआ है और डेली यूजर्स दिया हुआ है, तो वैल्यू पर डेली यूजर ये लोग निकाल लिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस. ओके, एक्सचेंज रेट दिया हुआ था 65 रुपीज़, तो तुम्हारा बेसिकली ये USD में आया है, तो इसको INR में कन्वर्ट करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो वैल्यू विल कम टू दिस. अब क्वेश्चन में वॉज गिवन सिंस वी आर वैल्यूइंग चैट ऐप, तो चैट ऐप के लिए वैल्यूएशन के लिए मोनिका बिलीव्स दैट चैट ऐप को 95% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो ये जो वैल्यूएशन है ये तो 100% पे वैल्यूएशन है, 95% पे होगा तो इतना वैल्यू आएगा. सो बेसिकली इतना एडजस्टेड वैल्यू आएगा एज पर मोनिका. ठीक है, अगर इसको इससे माइनस कर देंगे, 95% का इसको डिस्काउंट दे देंगे, तो उस हिसाब से जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो इतना आना चाहिए एज पर मोनिका. और डेली चैटअप यूजर्स कितने दिखा रहे हैं, इतने दिखाए हैं क्वेश्चन में चैटअप के यूजर्स. तो बेसिकली वैल्यू कैसे होगा, जितना तुम्हारा वैल्यू पर डेली एक्टिव यूज़र आ रहा है नेट में इनटू जितने टोटल नंबर ऑफ यूजर्स थे चैटअप के, तो वैल्यू ऑफ द चैटअप. एक बार यू वंस अगेन गो विद द सम, इट इज़ वेरी इजी गोइंग. आप वापस से मेरा वीडियो वापस से एक बार देखना, व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन, यू ईजिली गेट थ्रू दिस सम.
अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल हेल्प यू आउट. ओके, नाउ द लास्ट सम विच इज लेफ्ट इज बुक वैल्यू मल्टीपल वाला क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 13. Okay, let's do this even. Arvind, it's also an important question. Also, illustration 12 was important. Please mark it important for examination. Arvind has been assigned the value VG Private Limited. The company is privately held and does not have major operations. ठीक है. Accordingly, market comparable companies were not identified and management has not been able to provide any मीनिंग अबाउट द कंपनी. ठीक है, द एक्सट्रैक्ट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटीज दिया हुआ है, एसेट्स दिया हुआ है. ओके, नाउ व्हाट इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. द कंपनी रिकॉर्ड्स पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट एज कॉस्ट. बेसिकली जब भी वैल्यू करेगा तो पीपीई एंड इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट ओनली. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंटेन्स लैंड. बेसिकली पीपीई का जो वैल्यू है, PPA इज ऑफ ₹441.39, उसमें से 220.70 इज लैंड. तो बेसिकली रिमेनिंग जो बचा दैट इज द वैल्यू ऑफ PPE. ठीक है, इतना लैंड में जो बुक्स इसमें जो PPE में जो लैंड का वैल्यू है, बेस्ड ऑन द असेसमेंट लैंड वैल्यू हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय 15% फ्रॉम इट्स बुक वैल्यू. Okay, so the book value was 220.70. So basically, as per forecast, the value of land has increased by 15%, which will come to 220.70 plus 15%. It will come to 253.805. Okay. अब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है. इन्वेस्टमेंट वॉज ऑफ 1000. इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स 40,000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज and 10,000 shares of Infosys. As on valuation, they are trading at 2,300 per share and 1,800 per share respectively. Basically, investments जो है 1 लाख का, इसमें 40,000 is of RIL number of shares and 10,000 shares is of Infosys. ठीक है, एंड जिसका ट्रेडिंग डे का वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू क्या दिया हुआ है, द ट्रेडिंग एट, मतलब किस वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस दिया हुआ है तुम्हारा 2,300 और इसका 1,800 पर शेयर. तो टोटल वैल्यू निकाल लोगे इससे, दिस इंटू दिस, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू प्राइस, दिस इंटू दिस, एज ऑन डेट, आज के डेट पे ये वैल्यू आ जाएगा. तो व्हाट, और उसके बाद क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग इज इतना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी आउटस्टैंडिंग इज इतना. ठीक है, अब देखो क्या क्या निकालना है. बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, सो दिस कैन इजीली बी कैलकुलेटेड. बेसिकली क्या करना है, जितना भी टोटल एसेट्स दिया हुआ है दैट इज 188, कहाँ गया, लेट मी शो हियर, इतना दिया हुआ है ना तुम्हारे बैलेंस शीट में. दिस इज द टोटल एसेट्स प्लस जितना टोटल इक्विटी हो गया. ठीक है, जितना टोटल एसेट्स है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स और बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज अलग अलग दिखा दिया है क्वेश्चन में. ठीक है, लाइबिलिटीज़ का अलग से दिखा देना, इक्विटी शेयर कैपिटल अदर इक्विटी को, और फिर अदर लाइबिलिटीज़ इक्विटी को अलग से दिखा देना, आई मीन. ठीक है, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी अलग दिखा देना एंड बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अलग दिखा देना. डन. ये तो ईजी था, इसमें तो बस सम करना था, कुछ था नहीं इसमें हार्ड एंड फास्ट. तो ये हो गया तुम्हारा बुक वैल्यू, ठीक है, ऑफ द कंपनी, और इसका टोटल वैल्यू निकाल के दिखा देना यहाँ पे क्वेश्चन में. ठीक है, अब नेट एसेट वैल्यू ऑन फेयर वैल्यू बेसिस. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. फेयर वैल्यू बेसिस पे यू हैव टू कैलकुलेट NAV. सो बेसिकली क्या क्या चीज़ में चेंजेस लाना है अपने को. सबसे पहले PPE में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है. PPE में बस क्या हुआ है, वी हैव टू डिडक्ट लैंड का वैल्यू. तो जब लैंड का डिडक्ट कर देंगे वैल्यू 441.39 माइनस 220.70, तो बेसिकली 220.69 आ रहा है. चलो 70 लिया है तो 69 इसका है प्लांट एंड मशीनरी का, और लैंड का है 220.70. ठीक है, अब मार्केट वैल्यू बेसिस पे क्या करेंगे. प्लांट एंड मशीनरी में तो जब दिया हुआ है कि कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, आ रहा है कॉस्ट, तो वही वैल्यू लिख देंगे 220.70. लैंड में क्या हो रहा है, लैंड अप्रिशिएट हो जा रहा है, जिसका अप्रिसिएशन का वैल्यू आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 253.805. ओके, तो टोटल वैल्यू आ गया. तो ये हो गया तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ PPE एंड लैंड निकल गया तुम्हारा.
अब क्या चेंजेस करना है इन्वेस्टमेंट्स में, तो इन्वेस्टमेंट्स में तुम्हारा रेट दिया हुआ ही था, वैल्यू पर शेयर दिया हुआ था, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ था, मार्केट वैल्यू निकल जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है यहाँ पे टेबल के थ्रू। ठीक है, डन। ये दो चेंजेस हैं बस। अब क्या करना है तुम्हें, जो ये टोटल बुक वैल्यू आया इसमें से तुम लोग क्या करोगे, सिंस अपने को इन्वेस्टमेंट्स एंड तुम्हारा जो पीपीई हुआ उसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज उसके वैल्यूज़ में एज पर एडजस्टमेंट चेंजेस आया है। सो व्हाट विल वी डू, बुक वैल्यू जो भी दिया हुआ है पीपीई का और इन्वेस्टमेंट्स का उसको अपने डिडक्ट कर देंगे टोटल बुक वैल्यू से, और जितना फेयर वैल्यू आया है उसको ऐड कर देंगे दोनों का। ठीक है, तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो इतना आएगा। ठीक है, उस नेट इफेक्ट को यू ऐड विद द बुक वैल्यू बेसिकली, तो वो तुम्हारा NAV आ जाएगा। समझ गए? लेट्स वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस। व्हाट वी हैव डन इज, जो टोटल बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी आया था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें अपने क्या किया, सिंस इन्वेस्टमेंट और पीपीई का वैल्यू चेंज हुआ है फेयर वैल्यू मेथड के हिसाब से बिकॉज एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे उसमें, सो व्हाट विल वी डू इज बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और बुक वैल्यू ऑफ पीपीई विल डिडक्ट and will add the fair value as calculated in the table above, note 1 and note 2. ओके, तो ये सब का जो नेट एडजस्टमेंट्स आएगा उसको तुम बुक वैल्यू में ऐड करोगे एंड द नेट एसेट वैल्यू विल बी दिस। ओके, डन विद इट। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो NAV क्या होता है, NAV मेथड से कैसे वैल्यू निकालते हो, जितना तुम्हारा नेट एसेट्स वैल्यू आया, ठीक है, फेयर वैल्यू के बेसिस पे, बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो इतना आ गया तुम्हारा वैल्यू पर शेयर। बेसिकली इसमें क्या किया है, क्योंकि ये लैक्स में था तो इसको लैक्स में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड किया है। ठीक है, डन। तो बेसिकली यही है, बुक वैल्यू निकाला, NAV निकाला, वैल्यू पर शेयर ऑन फेयर वैल्यू बेसिस निकाल दिया, डन। ठीक है, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी इजी गोइंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 12, also 11 and question number 10. These are the most important questions from the illustration point of view. Okay, so done with almost all the illustrations. Okay, almost all the illustrations are done. So in the next video we'll go with another chapter. Try to solve the questions which are given at the back. If you have any doubt with any of the questions above, basically I try to solve 2 or 3 questions which are important from this also in another video so that it will be helpful for you. There are almost 3 questions over here. I can see 3 questions which have solution, solved cases are given. Also there are MCQs, please don't leave that even, please solve the entire MCQ of the book. Also there are almost, I think so, 10-11 questions are there. 4 questions are this. There is an exercise, please do solve this also for theory purpose, MCQ purpose. Okay, there are almost how many questions MCQ, there are 54 MCQ over there. Please solve all the MCQs, all are very important from exam point of view. And there are numerical questions which are small questions, 5 questions. Let's see if we can do it in this video only. Let's do this numerical questions. क्या दिया हुआ है question में? Okay, I think so solutions are given. What I'll do with it, if you have any doubt you ask me, I'll help you out with these questions. And these are easy going sums. WACC निकालना है, तुम्हारा KE निकालना है जिसका बस एक फॉर्मूला है. So कोई डाउट आए then you please ping me up, I'll help you out with it. Do message on my Telegram channel for it. There are comprehensive numericals also given at the back. इसमें से I'll see tomorrow if I find any questions are difficult, I'll solve it for you in a separate video so that it will be helpful for you. There are 19 questions. Yeah, there are 19 questions and one unsolved case study. So basically 20 to 25 more questions are there. For these 19 questions, if I find any of the questions are difficult, I'll solve these questions. But do make sure in exams don't go without solving these questions, because इन्हीं क्वेश्चंस में से एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में दिखेगा. आई कैन होल
हार्टेडली एंड गारंटी यू कि ये क्वेश्चंस आएंगे। और थोड़े बहुत पास्ट और ईयर क्वेश्चंस पे प्लीज़ ध्यान दो, उसमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ऑन कांस्टेंट बेसिस। लाइक अभी जो मैंने 4 क्वेश्चंस बताया, प्लीज़ गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चंस। तुम इनमें से 2 या 3 क्वेश्चन पक्का रिपीटेड देखोगे पिछले 3 या 4 साल में। सो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इवन आई थिंक सो ये जो इलस्ट्रेशंस है, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 19, उसमें से 2-3 क्वेश्चंस उसी टाइप के होंगे जो पीछे दिया हुआ है। उसको सॉल्व करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वेरी इजीली। ओके, पिंग मी ऑन टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मेरे चैनल में ऑलरेडी डला हुआ है। आई विल हेल्प you out with the questions. Okay, hopefully you like this video. If you liked it, please do give a like, subscribe and share with your friends. Thank you.